Not at all, because this is not the first film which is getting released, so there's no question of any kind of nervousness. I'm rather excited. I'm rather excited for the fact that the kind of film which has been made, जो दिल से बनाई गई है वो फिल्म, लोग उसको किस तरह से लेंगे इस मामले में मेरा एक्साइटमेंट ज़रूर है, लेकिन नर्वस नहीं होता हूँ मैं. अब क्या नर्वस हूँ? See, this is about a Kashmiri guy who basically works for a PWD department, and he's an engineer, and how in the given situation of Kashmir he gets trapped, and in that situation also how he maintains his honesty even in that situation. It becomes the matter of choice that आपको क्या चूज़ करना है एक ख़ास सिचुएशन में, जब आपके सामने बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ल्योर कर रही हैं. उन सिचुएशन में भी जब आप ईमानदारी का रास्ता अपनाते हैं, that becomes the challenge. Now this guy is basically trapped in that situation. जो अपने फैमिली से बहुत प्यार करता है, हर एक आदमी करता है, but this guy's attachment towards his son, towards his family, towards the society, उसके लिए परिवार और सोसाइटी के मसलों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है. उस तरह का आदमी है. लेकिन उस समय के हालात में mid-90s में कैसे एक पॉलिटिकल सिचुएशन में वो आदमी ट्रैप होता है और ट्रैप का क्या नतीजा होता है, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट दैट. Okay, जैसे आपने कहा the current scenario is the moment. Not current scenario. I'm okay. Absolutely, very similar what you have said this right now. Surgical strike. Then post this there are so many things happening. They don't want Pakistani actor to be a part of the Hindi film industry. Now, Aadil-e-Mushkil, which is about to release, there's a threat coming from the political parties. You belonging to the same industry, what's your take? What's your view? I will tell you something that every other person today is talking about surgical strike. हमारे यहाँ कहते हैं कि अप्पू, झप्पू, पप्पू, everybody is talking about surgical strike. The irony of this country is that you get a platform like this, I get a platform like this, and I start talking about the surgical strike. जिनके घरों में दूर दूर से कोई भी आर्मी का कोई जवान इन्वॉल्व नहीं है, दूर दूर से कोई रिलेटिव आर्मी में नहीं है, लेकिन वो आदमी आज सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बोल रहा है. ये बहुत ही दुख की बात है. मुझे लगता है कि एज एन एक्टर आई शुड रादर फोकस ऑन माई एक्टिंग, एंड बीइंग अ जर्नलिस्ट people should focus on other important topics which are equally important than talking about surgical strike. Okay, that's the important part is Aadil-e-Mushkil, which is banned by a political party, and I believe being an actor it is very important for you also. See, I'll tell you something. The political party has it been banned by the government? No, it is not. Then what is the point in talking about it? No, see, political parties can raise questions. Political parties can raise questions, but the government, until and unless this is banned by the government, you cannot say the political party तो ऐसे ही बातें करती रहती है कि वो फिल्म रिलीज नहीं हो, ये फिल्म रिलीज नहीं हो, ये सब तो चीज़ें चलती रहती हैं. बट गवर्नमेंट जब तक इस चीज़ को बैन नहीं करती है, मैं नहीं मानता कि किसी फिल्म को आप में अगर गट्स है तो फिल्म को आप रिलीज कीजिए. देखिए गवर्नमेंट आपको सिक्योरिटी देती है या नहीं देती है. Mukesh Bhatt today met Mr. Rajnath Singh. I don't know about that. I would rather talk about my father Iqbal, than what Mukesh Bhatt says, what government of India says, what other people say. Let's talk about my father Iqbal. राजेंद्र जी, एक क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी माय फादर इकबाल के लिए आपने कई सिटी टूर किए हैं जी. तो मैं फिल्म के बारे में तो आप बता ही चुके हैं, लेकिन हम एक चीज़ जानना चाहते हैं कि वहाँ के मीडिया से जैसा आपका इंटरेक्शन हुआ और बॉम्बे में जो मीडिया इंटरेक्शन कर रही है, दोनों में क्या फर्क महसूस करते हैं? मुंबई की मीडिया जो है वो जाहिर सी बात है, चूँकि आपकी घर की मीडिया है, लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं. बाहर की मीडिया जो है डेफिनेटली वो भी उतना ही अवेयर हैं, लेकिन जैसे कहते हैं कि घर की बात कुछ और होती है, तो मुंबई तो मेरे लिए घर है. और यहाँ की मीडिया वाकई उस हिसाब से काफ़ी कॉन्शियस है, काफ़ी अवेयर है. तो थोड़ा सा फ़र्क होता है द नेचर ऑफ क्वेश्चंस में, और नेचर ऑफ क्वेश्चंस कभी कभी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं. बाहर के जो है अपने लोकल मसले होते हैं, उन लोकल मसलों की चर्चा ज़्यादा होती है, उसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं. ये बेसिक मुद्दा मुझे लगता है कि बेसिक डिफरेंस है. दर्शकों को अपनी फिल्म के बारे में क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई एक ऐसा अटेम्प्ट है जो कुछ एंथुजियास्टिक एक टीम है जिसने बनाई है. बड़ी साफ़ सुथरी सी फिल्म है. आप देखेंगे कि एक आम आदमी का जीवन कितनी सारी कठिनाइयों से गुजरता है. उस कठिनाई में भी वो आदमी अपनी डिसेंसी मेंटेन करता है, कैसे करता है, और एक गवर्नमेंट के साथ काम करता हुआ आदमी
जब एक पॉलिटिकल सिनारियो में पड़ता है तो अपनी गरीबी के बावजूद कैसे वो ट्रैप नहीं होता है, ये फिल्म उन लोगों के लिए काफ़ी इंस्पायरिंग होगी। बहुत ही साफ़ सुथरी सच्ची सी फिल्म है जो दिल से बनाई गई है। आई एम श्योर अभी आप लोग भी फिल्म को देखने के लिए जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि आप लोग किसी भी हद से डिसअपॉइंटेड होंगे। थैंक यू सो मच जी। Personally feel I should not ask you, but still asking you, how many pain we are getting for my father? I think this question should be asked from the producer, not from me. Thank you so much. Thank you. Thank you. वसीम भाई खास बात है यहाँ पे आने की प्रीमियर में देखिए, क्योंकि मेरा एक गाना है इसमें और बहुत ही अच्छा, सिर्फ गाना नहीं कहूँगा, गज़ल है, क्योंकि आजकल गज़लें बनती नहीं हैं और तो इस फिल्म में गज़ल भी है, माई फादर इकबाल जैसा कि नाम भी ऐसा है, तो इसलिए मैं देखने आया हूँ कि वो पर्दे पे कैसे लगती है। क्या बिलीफ था म्यूजिक डायरेक्टर का आपने जब आपने गजल का गाई और आपने रिकॉर्ड किया? इसका ब्रीफ ऐसा था कि उनको बिल्कुल गज़ल का पैटर्न नहीं चाहिए था, उनको चाहिए था कि ये कुछ मॉडर्न लगे, जो यूथ से कनेक्ट हो सके। और इसके हालांकि शब्द बड़े भारी भरकम शब्द हैं, लेकिन इसकी जो गायकी का अंदाज़ है वो बहुत ही मतलब सिंपल रखा है, थोड़ा वेस्टर्न भी है, तो गज़ल में कुछ नई बात है। ओके, आप इफ यू कैन हम सम लाइन ऑफ द जी, अगर कुछ आप गुना दें उसी गजल का। वक्त फुर्सत में मेरे सामने वो खूबरू होगी, गुलों के साए होंगे और जिंदगी रूबरू होगी। वक्त फुर्सत में मेरे सामने वो खूबरू होगी। हिंदुस्तान पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लेकर जो मसला चल रहा है, दिल मुश्किल को लेकर जो मसला चल रहा है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। देखिए, मैं आर्टिस्ट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक देश की बात आती है, मुझे लगता है कि वी शुड स्टैंड बाय आवर कंट्री। जब पूरे देश के जवान, इतने सारे लोग उसके लिए खड़े हैं, उनको नहीं पता है कि मैं इस कंट्री का आर्टिस्ट हूँ कि किस कंट्री का आर्टिस्ट हूँ, लेकिन वो फिर भी लड़ रहे हैं। उनको नहीं पता है कि यहाँ पे ऐ दिल मुश्किल लगने वाली है और उसमें फवाद खान आएंगे। वो सिर्फ एक वेट करते हैं कि उनको मरना कब है, तो वो गोली खाते हैं, मर जाते हैं, और हम लोग सिर्फ ये देखते रहते हैं। हम लोग उसमें भी रीज़न्स निकालते रहते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि ये हमें प्रूफ बताइए, ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। तो मुझे लगता है कि देश के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है। हम सब लोगों को आर्मी का साथ देना चाहिए, अपने देश का साथ देना चाहिए। ओके, अनुराग ने जिस तरह से कहा कि जिस वक्त फिल्म फिल्माई जा रही थी उस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्ते बेहतर थे, और उसके बाद ये सब हुआ है। 400 टेक्नीशियन जी जी, और एक प्रोड्यूसर का पैसा, ये सब भी तो हिंदुस्तान नहीं, ये बात पॉलिटिकल पार्टी अपोज कर रही है उसको रिलीज करने के लिए। हालांकि गवर्नमेंट नहीं कह रही है, हाँ। और आलम ये है अपोज करने का कि आज राजनाथ सिंह से मुलाकात करी मुकेश भट्ट ने जाके दिल्ली। जी, तो ये और फिल्म पीपल आर ऑलवेज सॉफ्ट टारगेटेड, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ये मुझे गलत लग रहा है। ये बात जो आपने बोली है, मुझे इस बारे में मैं भी बहुत देर से सोच रहा था, क्योंकि ए दिल है मुश्किल या कोई और फिल्म, जितनी भी फिल्में बनी हैं, वो जब बनी थी तब हमारे रिश्ते पाकिस्तान के साथ बुरे नहीं थे, और तब हमारे जितने भी आर्टिस्ट थे वहाँ के, वो यहाँ पे वेलकम थे और तब चल रहा था। तो अब उनकी ये गलती नहीं है। अब फिल्म कंप्लीट हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि उसको रिलीज़ होने देना चाहिए बड़े प्यार से, क्योंकि उनका एक आर्टिस्ट है, हमारे यहाँ के 400 टेक्नीशियंस हैं जिनकी दाल रोटी यहाँ से चलती है। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ टोटली रॉन्ग। आगे के लिए, आप फ्यूचर के लिए कह सकते हैं कि हम उनके साथ काम ना करें, वो बेटर है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सॉरी, किस तरह से आपका सहयोग इस लगे, उसके बारे में सहयोग तो किस तरह से जुड़े, मतलब और म्यूजिक के बारे में कुछ जानना चाहिए। और म्यूज़िक तो पूरा म्यूज़िकल फिल्म है और बहुत अच्छा सिचुएशन मिला है जिसको हमने उस अच्छी तरह से हमने उसको खूबसूरत से सजाया। म्यूजिक सुनेंगे तो पता चलेगा। वक्त फुर्सत जो यूवी ने गाया, इसको 3 तरीक़े से 3 वर्जन बनाया, तो बहुत ही प्यारा सा गाना है। कितना चैलेंजिंग था, जिस तरह से टाइटल मैं फादर को आपके लिए गाना कितना चैलेंजिंग है। ये तो बहुत ही टफ गाना है, हर किसी के बस की बात नहीं है इसको कंपोजिशन करना। काफ़ी जो बड़े बड़े वाजिद भाई, सजीद भाई, सब ने बोला कि इस जॉनर का गाना बनाना बहुत मुश्किल होती है। जैसे कमर्शियल सभी गाना बनाते हैं, बट इसको बनाना थोड़ा मुश्किल है। सुनेंगे तो पता चलेगा सबको।
और पसंद भी आएगा। अभी नरेंद्र झा जी ने भी थोड़ा आपका नाम इस गाने का प्रशंसा किया, मेरा नहीं, बोला गाना बहुत दिल छूने वाली है। आपका कितना गाना है इसमें? 3 गाने हैं। तो गाने के बारे में जानना चाहेंगे? वही वक्त फुर्सत वादे मुद्दत 2। लाइन गुनगुना देना। वक्त फुर्सत में मेरे सामने वो खूबरू होगी, गुलों के साए होंगे और जिंदगी रूबरू होगी। इस तरह से फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे सर? फिल्म तो जब सुना हमने तो नरेशन में बैठा तो बहुत अच्छा लगा, और लुक भी बहुत अच्छी फिल्म थी, और उम्मीद है सबको पसंद आएगा। और एवरेज बहुत अच्छी, म्यूज़िक भी बहुत अच्छा किया। फिर थैंक यू वेरी मच।